done with the chapter called the nervous system, and from this section we'll be studying about a new topic called the chemical coordination and integration, या अगर इसको सरल भाषाओं में कहा जाए the endocrine system. तो हमारा दूसरा चैप्टर हो गया the chemical coordination and integration, या इसको हम लोग बोल सकते हैं the endocrine system. तो अगर एंडोक्राइन सिस्टम या हमारे नर्वस सिस्टम का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया जाए कि हाउ दीज सिस्टम वर्क फॉर द कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ द बॉडी, तो हम लोग इसको पॉइंट वाइज समझने का कोशिश करेंगे. तो अगर पहला पॉइंट ले तो ये जो हमारा न्यूरल सिस्टम हो गया, द न्यूरल सिस्टम and the endocrine system they jointly एक साथ मिलके coordinates and regulates the physiological functions in the body. So both the system are somehow working for the same purpose. हमारे शरीर के अंदर होने वाले जो different forms of functions हो गए which are being performed by different systems, they are basically, both these systems are somehow trying to bring about those functions inside the body. अगर हम अपने physiological functions की बात करें तो इससे हम लोगों का क्या तात्पर्य है? हम लोग का ये तात्पर्य है कि ये जो physiological functions हो गए, the physiological functions are the functions of various systems in the body that are dependent on the presence of certain factors such as ions, molecules or hormones. The physiological functions are normally the functions that are being performed by the various systems of the body. यहाँ पे अगर हम nervous system और endocrine, मतलब अगर हम digestive system की बात करें या circulatory system की बात करें या excretory system की बात करें तो they are performing their function. Whereas if talking about the nervous system and endocrine system, they are basically responsible for performing certain physiological functions of the body. Physiological का तो मैंने definition बताया. फिजियोलॉजिकल फंक्शन मतलब ये होता है कि ये एक फंक्शंस है ऑफ वेरियस सिस्टम्स, और वो सिस्टम्स क्या हो गए? द न्यूरल सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम, जो कि डिपेंड करते हैं सर्टेन फैक्टर्स पे, और वो फैक्टर्स कुछ भी हो सकते हैं. वो आयंस हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, हार्मोन्स हो सकते हैं, प्रोटॉन्स हो सकते हैं, जिनके प्रेजेंस में ही these systems will be able to perform their activity or will be able to perform their function. अगर इसको थोड़ा और समझा जाए तो how will I be able to explain this thing to you people? So let me clear this mess and then हम लोग न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम को थोड़ा सेपरेटली लेंगे और वी ट्राई टू ड्रॉ अ काइंड ऑफ अ डिस्टिंक्शन जस्ट टू अंडरस्टैंड कि ये दोनों किस तरीके से अपना फिजियोलॉजिकल फंक्शन को परफॉर्म करते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर सर्टेन फैक्टर्स. तो चलिए देखते हैं. तो अगर हम अपने नर्वस सिस्टम की बात करें तो दिस इज़ हाउ इट परफॉर्म इट्स फिजियोलॉजिकल फंक्शन. नर्वस सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो नर्वस सिस्टम जो हो गया
It performs a physiological function. और ये कैसे करता है? It depends on the presence, depends for the nervous system to function itself or process itself, it depends on the presence of certain ions. तो ये हमारे ions बेसिकली यहाँ पे Na प्लस और K प्लस हो जाते हैं. When you people will enter the intermediates, और वहाँ पे अगर आप बायोलॉजी लेते हैं as your core subject, then you will be able to relate to it. You will be getting a deeper and wider information regarding how the impulse is being generated along the length of the nerve fibers. Agar, if sticking to the class 10 standard, I would guess that we should better keep the spectrum a little small, क्योंकि यहाँ पे उतना ज़्यादा wider information की कोई requirement नहीं होती है. Just to make your people understand what the physiological function is and how the nervous system is able to perform its physiological function depending on the presence of certain ions, उसी के basis पे मैं एक आपको थोड़ा सा छोटा सा explanation दे देती हूँ. तो यहाँ पे nervous system में हमारे nerve fibers पाए जाते हैं. ये हमारा nerve fiber हो गया, nerve fiber का axon हो गया, मतलब सॉरी न्यूरॉन का axon हो गया. Axon ही is basically the nerve fiber. अगर हम nerve fiber कहते हैं तो we are basically trying to refer to the axon of a neuron. तो ये axon हो गया, ये membrane हो गया which surrounds the exoplasm. अंदर exoplasm हो जाता है which is being referred to the intracellular fluid. इंट्रासेलुलर मतलब क्या? किसी भी सेल के अंदर या विद इन जो फ्लूइड पाया जा रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंट्रासेलुलर फ्लूइड. एक जनरल टर्म हो गया फॉर द एक्सोप्लाज्म. और इस मेम्ब्रेन के बाहर ये सराउंडिंग रीजन में जो फ्लूइड पाया जाएगा इसको हम लोग क्या कहेंगे? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड. तो हमारे भाई साहब ये दो आयंस हो गए. अब इन आयंस का ही एक्सचेंज होता है अक्रॉस दिस मेम्ब्रेन. अंदर Na प्लस आया, बाहर K प्लस गया. तो ये जो एक्सचेंज हो रहा है, एक्सचेंज या पंपिंग इन और पंपिंग आउट ऑफ Na प्लस एंड K प्लस आयंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन, इसी के वजह से एक इम्पल्स जनरेट होता है. इम्पल्स इज बी जनरेटेड. और जब इम्पल्स जनरेट होगा इट विल फाइनली बी ट्रांसमिटेड एंड देन द नर्वस सिस्टम गोना फॉलो दैट सेम ओल्ड प्रोसेस फॉर इट टू फंक्शन इन सेल्फ. तो यहाँ पे आपने देखा कि हाउ द नर्वस सिस्टम इज एबल टू परफॉर्म इट्स फिजियोलॉजिकल फंक्शन बाय डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंस ऑफ दीज टू आयंस, दैट इज Na प्लस एंड K प्लस. इनका एक्सचेंज होता है अक्रॉस द नर्व फाइबर एंड अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ द नर्व फाइबर एंड फाइनली द इम्पल्स इज बी जनरेटेड. तो ये नर्वस सिस्टम का एक फिजियोलॉजिकल फंक्शन हो गया. तो ये भाई नर्वस सिस्टम की बात हो गई. अब थोड़ा देख लेते हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम इज हाउ इट इज़ एबल टू परफॉर्म इट्स फिजियोलॉजिकल फंक्शन. तो वो कहीं ना कहीं एक दूसरे फैक्टर पे डिपेंड करेगा इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट इट्स फंक्शन. तो इसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ एंड देन वील बी टॉकिंग अबाउट द एंडोक्राइन सिस्टम. So now let's talk in brief about the physiological function of the endocrine system. तो अगर हम endocrine system के physiological function की बात करें तो first of all endocrine system is composed of glands that secretes chemical messengers. Chemical messengers called the hormones. ये जो हमारा हार्मोन्स था was first isolated from the pancreas of the brain. उसके बाद जाके हार्मोन्स की पढ़ाई की गई, उसे ऑब्जर्व किया गया, उसके फंक्शन को समझा गया and how it is able to perform its function in the human body. तो for the first time जहाँ इसको डिस्कवर किया गया या आइसोलेट किया गया, आइसोलेट मतलब निकाला गया, अलग किया, was first isolated from the pancreas of the dog, on the pancreas of the dog. ये जो हार्मोन्स है केमिकल मैसेंजर्स हो गए. मैसेंजर्स का काम क्या होता है? कन्वे करना मैसेज. तो
तो बेसिकली इफ दे आर ट्राइंग टू कन्वे द मैसेज, तो ये कहीं ना कहीं उस मैसेज को डिपॉजिट करेंगे, एक टारगेट ऑर्गन होगा, एंड देन वहाँ पे जब वो मैसेज पहुँचा देंगे हमारे ये हार्मोन्स, देन दैट ऑर्गन विल परफॉर्म इट्स फंक्शन अकॉर्डिंग टू द मैसेज दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय दीज हार्मोन्स। इसीलिए इसका नाम केमिकल मैसेंजर्स पड़ता है। सो नाउ दीज हार्मोन्स are being directly poured into the bloodstream, और इस ब्लड स्ट्रीम मतलब ब्लड स्ट्रीम में इन लोग को डायरेक्टली ऐसे डाल दिया जाता है। और ये जो ब्लड स्ट्रीम है, दे विल कैरी these hormones to a specific target organ। टारगेट ऑर्गन मतलब कुछ भी हो सकता है, बॉडी का टिश्यू हो गया या बॉडी सेल्स हो गए या डिफरेंट ऑर्गन्स हो गए। बेसिकली टारगेट मतलब दीज आर दी टारगेटेड ऑर्गन्स, ये लोग टारगेट है जहाँ पे हार्मोन्स को पहुँचाना है। और स्पेसिफिक इसीलिए क्योंकि उसकी जब तक ये स्पेसिफिक हार्मोन इस स्पेसिफिक ऑर्गन पर नहीं पहुँचेगा तब तक दीज ऑर्गन्स वोंट बी एबल टू शो इट्स इफेक्ट और शो इट्स फंक्शन, मतलब कोई पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो ये बेसिकली टारगेट ऑर्गन कहाँ हो गए, जहाँ पे वी आर एबल टू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ द हार्मोन, इफेक्ट ऑफ द रिसीव्ड हार्मोन, वही हमारा टारगेट ऑर्गन हो जाता है। जैसे कि अगर हम इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन देन पैनक्रियाज हमारा सेक्रीट करता है, एंड देन उसके बाद उनका मेन जहाँ पे काम होता है, नहीं उससे अगर हम लोग देखा जाए, अगर हम लोग इसको थोड़ा और समझेंगे बाद में डिटेल में, अभी विल गेट कंफ्यूज अबाउट इट, ठीक है। टारगेट ऑर्गन मतलब बेसिकली हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड हो जाते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्रीटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स, एंड देन फिर उनका एक टारगेट होता है, तो उसी पे जाके ही वो वहाँ पे पहुँचेंगे एंड देन देयर बी शोइंग इट्स इफेक्ट, तो वो हमारा टारगेट ऑर्गन हो जाता है। तो यहाँ पे एंडोक्राइन सिस्टम इज डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंस ऑफ हार्मोन्स इन ऑर्डर टू परफॉर्म इट्स फंक्शन। तो ये अगेन एक फिजियोलॉजिकल फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है। जैसे नर्वस सिस्टम वॉज डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंस ऑफ आयंस इन ऑर्डर टू फंक्शन इटसेल्फ, वैसे ही हमारा एंडोक्राइन सिस्टम is dependent on the presence of hormones in order to bring about a kind of a specific function inside the body. तो हमारा nervous system and endocrine system is trying to work for the same purpose. अगर nervous system की बात की जाए तो nervous system का भी एक ही पर्पस है, भले उसका काम करने का तरीका अलग है। एंडोक्राइन सिस्टम की बात की जाए तो यहाँ पे काम होने का तरीका अलग है क्योंकि ये हार्मोन्स पे डिपेंडेंट है और वो आयंस पे डिपेंडेंट है, बट समहाउ दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग अबाउट अ सेम काइंड ऑफ अ रिस्पॉन्स इन दी बॉडी। वो कहीं ना कहीं जो डिफरेंट सेल्स हो गए, टिश्यूज़ हो गए, ऑर्गन्स को कंट्रोल या रेगुलेट करने का काम करते हैं। तो इफ नर्वस सिस्टम इज ऑल इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट दिस पर्पस, तो वहाँ पे एंडोक्राइन सिस्टम की क्यों हमें आवश्यकता आन पड़ी। तो इसे समझने के लिए, सवाल को समझने के लिए विल ट्राई टू कॉम्प्रीहेंड कि नर्वस सिस्टम है तो वहाँ पे एंडोक्राइन सिस्टम को लाने की क्यों ज़रूरत पड़ी। तो इसको हम लोग अब समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हाउ द नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम जॉइंटली रेगुलेट्स द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द बॉडी। तो अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ अ नेटवर्क ऑफ नर्व फाइबर्स। नेटवर्क ऑफ नर्व फाइबर्स मतलब नर्व फाइबर्स का एक जाल होता है जो हमारे शरीर के अंदर बिछा हुआ रहता है। अब नाउ दिस नेटवर्क ऑफ नर्व फाइबर्स इनरवेट्स द डिफरेंट
cells or the body tissues or the different organs of the body. इनोवेट से हम लोग का क्या मतलब? इनोवेट्स मतलब इन सेल्स में या इन टिश्यूज में या इन ऑर्गन्स में नर्व्स का सप्लाई बना रहता है, सप्लाई ऑफ नर्व्स का क्या बना रहता है? सप्लाई। इस चीज़ का मतलब क्या हो जाता है? इनोवेट्स। तो ये हमारा जो नेटवर्क ऑफ नर्व फाइबर्स है, दे बेसिकली इनोवेट्स द डिफरेंट सेल्स, बॉडी टिश्यू और ऑर्गन्स ऑफ दी बॉडी। फिर उसके बाद, और ये जो हमारे ऑर्गन्स हो गए, टिश्यू हो गए, इनको हम लोग एक स्पेसिफिक नाम देते हैं। यही लोग हमारे क्या हो जाते हैं? रिसेप्टर्स हो जाते हैं। रिसेप्टर विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर परसीविंग द स्टिमुलाई, या इफेक्टर हो गए विच इज़ बेसिकली विल ट्राई टू परफॉर्म अ फंक्शन, विल वर्क अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर गिवन बाय द ब्रेन। तो ये हमारा इफेक्टर रिसेप्टर क्या हो गए? वही हो गए हमारे सेल्स हो गए, बॉडी टिश्यू या ऑर्गन्स हो गए, विच आर बीइंग सप्लाइड बाय द नर्व फाइबर्स। और जैसे कि ये लोग सप्लाइड है बाय द नर्व फाइबर्स, तो हमारा क्या होगा? वही ओल्ड सेम प्रोसेस विल बी परफॉर्म। द रिसेप्टर्स विल बी रिसीविंग द स्टिमुलाई एंड देन एन इम्पल्स विल बी जनरेटेड, एंड देन उसके बाद ब्रेन विल बी रिसीविंग दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, एंड देन उसके अकॉर्डिंग एक ऑर्डर डिवाइस करेगा हमारा ब्रेन, एंड देन दैट सेम ऑर्डर विल बी पास्ड ऑन टू द इफेक्टर वाया द नर्व फाइबर कॉल्ड द इफेरेट और द मोटर न्यूरॉन। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ऑल द बॉडी टिश्यूज और ऑल द बॉडी सेल्स और द ऑर्गन्स आर नॉट इनर्वेटेड बाय द नर्व फाइबर्स। वहाँ पे नर्व्स का किसी भी तरीके का कोई भी सप्लाई नहीं होता है। तो ये प्रॉब्लम है कि ऑल द सेल्स और बॉडी टिश्यू और ऑर्गन्स are not innervated by the nerve fibers. अब भाई इन टिश्यूज में, इन पर्टिकुलर या कुछ सेल्स में हमारा सप्लाई नहीं बना हुआ है नर्व फाइबर्स का, तो जैसे कि सप्लाई नहीं बना हुआ है तो दे वोंट बी एबल टू परफॉर्म एनी ऑफ देयर फंक्शन, वो ऐसे ही रह जाएंगे। तो इसी गैप को या इसी वॉइड को फिल करने के लिए, इन ऑर्डर टू फिल दिस वॉइड, हमारे बॉडी में एक दूसरा सिस्टम पाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम अपने तरीके से इस वॉइड को फिल करने का कोशिश करता है। तो एंडोक्राइन सिस्टम डिपेंड्स ऑन द फैक्टर नोन एज द हार्मोन्स, और उसी बेसिस पे इट विल बी एबल टू परफॉर्म इट्स फिजियोलॉजिकल फंक्शन। तो मुझे लगता है कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ये एक बहुत ही ईजी सा आंसर हो गया। आई गेस यू पीपल वुड हैव बीन एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट्स द आंसर टू आवर क्वेश्चन हैज़ बीन, कि क्यों भाई नर्वस सिस्टम होने के बाद भी एक और सिस्टम की आवश्यकता हमारे शरीर को पड़ी, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे सारे ऑर्गन्स या सारे बॉडी टिश्यूज आर नॉट सप्लाइड विद द नर्व फाइबर्स, और अगर वहाँ पे सप्लाई नहीं बना हुआ है तो दे वोंट बी एबल टू परफॉर्म इट्स फंक्शन। तो कहीं ना कहीं उसी पर्टिकुलर वॉइड को, उस पर्टिकुलर एब्सेंस को फिल करने के लिए हमारा दूसरा सिस्टम पाया जाता है जिसको बोला जाता है एंडोक्राइन सिस्टम। सो नाउ फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट वीडियो हम सिर्फ और सिर्फ एंडोक्राइन सिस्टम की बात करेंगे। थोड़ा सा एंडोक्राइन एक्सोक्राइन के बीच में भी एक डिफरेंस को समझने का कोशिश करेंगे, दैट विल बी वेरी 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 ब्रीफ, और साथ ही साथ नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के डिस्टिंक्शन को भी थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे, और वो भी दैट विल ऑल्सो गोना बी वेरी ब्रीफ। फिर उसके बाद एंटायरली हमारा क्या रहेगा, एंडोक्राइन सिस्टम विल बी टॉकिंग अबाउट डिफरेंट ग्लैंड्स, विल बी टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट हार्मोन्स, द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट हार्मोन्स, एंड सर्टेन हार्मोन्स या स्पेसिफिक हार्मोन्स के कमी से या उनके मतलब हाइपोसेक्रीशन या हाइपर सेक्रीशन, हाइपो मतलब लो सेक्रीशन, हाइपर मतलब एक्सेसिव सेक्रीशन की वजह से कौन कौन से डिसऑर्डर्स बॉडी को झेलने पड़ते हैं। तो चलिए, नाउ वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट वीडियो।